Hello students. So this is your lecture 8 instruction set part 2. So in last lecture we discussed the different instructions related to data transfer. So last time हमने move instruction और load instruction study किया था basically. So आज हम basically कुछ data transfer से related कुछ instructions और arithmetic instructions study करेंगे basically. Okay. So वन मोर थिंग कि आपने मेमोरी को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, मेमोरी को किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड में, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, इनडायरेक्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, देन बेस्ड एड्रेसिंग मोड, देन इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड एंड बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. सो ये डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड आपने दिस डिफरेंट टाइप से आपने मेमोरी को किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं वो हमने सीखा था. ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज पुश एंड पॉप. ओके, so basically these instructions are related to stack. So before going to study about this push and pop instruction, we will study what is stack. So basically stack is used to store the temporary data. So why we want to store the temporary data into stack? So let us consider an example. Suppose this is your main program, this memory map. Okay, सो सपोज यहाँ पे आपने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4, इंस्ट्रक्शन 5, ओके एंड सो ऑन. ओके, सपोज ओके दिस इज सपोज main program. So suppose microprocessor is executing the main program, and during that main program microprocessor using the value of or content of AX, BX, CX and DX, different index register like SI, DI, okay, and segmentation register and IP and all. Okay, so main thing is what when the microprocessor is executing the main program, so that time AX, BX, CX, DX all will have some value or will content. Okay, क्योंकि कोई ना कोई टास्क परफॉर्म हो रहा होगा बेसिकली. सो उस टाइम सपोज माइक्रो प्रोसेसर के पास में कोई इंटरप्ट आए या कोई स्पेशल प्रोग्राम सब रूटीन एग्जीक्यूट हो. स्पेशल प्रोग्राम क्या होगा? सब रूटीन. एंड सब रूटीन विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? कॉल सब रूटीन. ओके, सो दैट टाइम व्हाट विल हैपन? सो microprocessor will move to a special program, and that special program is what? Subroutine. Okay, subroutine. सो स्पेशल प्रोग्राम में भी क्या होंगे? कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे बेसिकली लिखे हुए. बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन 1, 2, 3 इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से, और इसका एंड होगा RET. सो सपोज माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि microprocessor is executing the main program, and during the main program AX, BX, all the general purpose register, index register and base pointer are having some value. Okay, so when interrupt is received or when microprocessor will execute the then microprocessor will execute or move to the special program, and that special program is what? Subroutine. So subroutine is also the program is like a simple program, and it will end to the RET. okay, आपको कैसे पता लगेगा कि ये स्पेशल प्रोग्राम बेसिकली एंड हो गया स्पेशल प्रोग्राम का, कि इतना ही प्रोग्राम है ये, तो RET लिखा होगा लास्ट में. ओके, so that time microprocessor will suspend this the main program, and microprocessor will move to a special program, that is what? Subroutine. And first microprocessor will execute this, then only microprocessor will move to the main program.
or this location. Okay, so if suppose when microprocessor is executing the main program, so that time, so the BX register is having FF2BH, so this content. Okay, and as the when the microprocessor will move to a special program, so so that time, suppose after executing this the main or the special program, so the content of BX is like 0023H, and again after completion of this special executing the special program, microprocessor will execute again the same main program. So that time this microprocessor will take the value of BX 0023H, but when the microprocessor was executing the main program, so during that time the value of BX was FF2BH. So it means पूरा का पूरा program क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा. Okay, then this is a big problem. Then what is the solution? So solution is that, so whenever microprocessor is moving to a special program, that is subroutine, so that time the content of these general purpose register, then all register will be saved to a temporary memory. So that temporary memory are what? Stack. Okay, so whenever microprocessor will execute this main program, okay, then after when microprocessor will again move to the main program, so again the contents of the saved register and all will be again loaded. So this is the solution for this the problem. So it means suppose microprocessor जब भी main program execute कर रहा है और उस time सब रूटीन अगर एग्जीक्यूट होना है, तो क्या करेगा माइक्रोप्रोसेसर बेसिकली क्या करना होगा कि ये जो भी आपके रजिस्टर के जो भी कंटेंट है या जो भी आपका डेटा है, वो आप क्या करोगे, टेम्परेरी मेमोरी में आप स्टोर करोगे, और वो टेम्परेरी मेमोरी क्या होगी, बेसिकली स्टैक. सो बेसिकली आपके पास में दो ऑपरेशंस हैं. कौन कौन से? एक में तो आपको क्या करना है, डाटा को आपको, सो ओके, दिस इज व्हाट स्टैक, दिस इज स्टैक. सो फर्स्ट ऑपरेशन क्या कर रहे हो, जब भी माइक्रोप्रोसेसर मूव कर रहा है स्पेशल प्रोग्राम पे, सो आपको क्या करना है कि डाटा आपको स्टोर करना है बेसिकली. सो डाटा जो आप स्टोर करोगे बेसिकली वो क्या करोगे, स्टैक सेगमेंट में, दिस इज स्टैक. सो स्टैक में इज ए टेम्परेरी मेमोरी. सो टेम्परेरी मेमोरी में डाटा आप स्टोर करोगे. सो डाटा जो आप स्टोर करोगे वो किस इंस्ट्रक्शन से स्टोर करोगे, पुश. देन अगेन माइक्रोप्रोसेसर ने जैसे स्पेशल प्रोग्राम एग्जीक्यूट उसने कर लिया है, और उसके बाद में मेन प्रोग्राम पे वो रिटर्न कर रहा है. देन अगेन जो डाटा सेव किया था वो ही डाटा वो क्या करेगा, रिट्रीव करेगा फिर से. सो अगर इस तरह से रिट्रीव अगर जो डाटा करना हो, तो उसके लिए आप इंस्ट्रक्शन जो यूज में लोगे वो क्या करोगे, पॉप. सो पुश मतलब डाटा आप सेव कर रहे हो, बेसिकली इंसर्ट कर रहे हो. पॉप मतलब फिर से आप जो डाटा आपने सेव किया है वापस फिर से उनको क्या कर लोगे, लोड कर लोगे उन्हीं रजिस्टर में, राइट. सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ द स्टैक, कि किस तरह से बेसिकली डाटा इसमें लोड होता है और डाटा किस तरह से आप रिट्रीव कर सकते हो बेसिकली. सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ द स्टैक. सो now we will discuss the push and pop instruction, कि बेसिकली ये पूरी प्रोसेस होती कैसे है. ओके, सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन पुश. सो बेसिकली पुश अलाउज टू दिस save the data of all register into
stack. Okay, and whenever microprocessor will execute that special program, so आपको कैसे पता लगेगा कि वो स्पेशल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है? सो उस दिस इज व्हाट स्पेशल प्रोग्राम, उस स्पेशल प्रोग्राम के एंड में आपको RET मिलेगा. सो आफ्टर रिटर्न, so after RET stands for what? Return. ये हम स्टडी करेंगे बेसिकली आगे. So after return, the saved data is being loaded. So after return, load those data into register, and this process is called pop. Okay, so this is the basic meaning of the push and pop. So let us discuss कि ये push and pop कैसे perform होते हैं basically. So first we will discuss the push instruction. Okay, so basically push को instruction लिखते किस तरह से हैं? push, then again आपके पास कुछ लिखा होगा रजिस्टर, एंड ये जो रजिस्टर बेसिकली होगा वो रजिस्टर बेसिकली होगा कितने बिट का? 16 बिट का होगा वो रजिस्टर. ओके, 16 बिट का रजिस्टर लिखा होगा. सो बेसिकली किस तरह से लिखा हो सकता है? कुछ इस तरह से लिखा हो सकता है कि पुश AX, पुश BX, कुछ इस तरह से लिखा हो सकता है. ओके, 16 बिट का रजिस्टर होगा. सो ओके, डाटा आपको बेसिकली कहाँ पे सेव होगा? बेसिकली वो डाटा आपका सेव होगा स्टैक सेगमेंट में. सो सपोज ये आप ये स्टैक सेगमेंट कंसीडर करो. सपोज दिस इज स्टैक सेगमेंट, and the initial or base value of the stack segment is stored into stack segment register. So suppose this is stack segment. Okay, and initial base value is what? 5000H. so basically यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ तक होगा आपको बताया हुआ है मैंने कि 5FFFFH. कितनी साइज है इसकी स्टैक सेगमेंट की? बेसिकली 64 KB का साइज है बेसिकली इसमें. अब सपोज इसमें जो डाटा, ओके, वन मोर थिंग कि स्टैक में जो डाटा सेव हो रहा है वो बेसिकली एक स्कीम दैट इज व्हाट? लास्ट इन फर्स्ट आउट. कि लास्ट में जो डाटा इन हुआ है ना वो क्या होगा? आउट फर्स्ट आउट. ठीक है, तो डाटा इस तरह से सेव होगा कि बेसिकली सपोज इसमें डाटा स्टोर है, यहाँ पे कुछ डाटा हुआ सेव है, यहाँ पे कुछ डाटा सेव है, यहाँ पे डाटा सेव है, डाटा इस तरह से डाटा सेव है, राइट. सो सपोज यहाँ पे सेव है आपका 22, यहाँ पे सेव है 21, यहाँ पे सेव है आपका 51, यहाँ पे सेव है सपोज 52. ओके, 23, 25, कुछ भी डाटा 88 बिट का डाटा आपका स्टोर है. सो सपोज यहाँ पे जो आपका इस लोकेशन की अगर मैं वैल्यू बात करूँ, सो ये लोकेशन क्या हो जाएगा? ये अगर 5FFH है तो ये क्या हो जाएगा? 5FFE. ये क्या हो जाएगा आपका? ये इस लोकेशन का अगर आपको पास एड्रेस है 5 4 टाइम FH, देन ये क्या हो जाएगा? E. ये क्या हो जाएगा? D. ये क्या हो जाएगा? C. ये क्या हो जाएगा? बेसिकली B. होगा कि नहीं होगा? बेसिकली ये अगर F है तो ये क्या हो जाएगा? E. E के बाद में D. D के बाद में C. C के बाद में B. कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका. सो इट मीन्स कि यहाँ पे इसका जो एड्रेस है बेसिकली, इसका जो एड्रेस है वो, इसका अगर मैं एड्रेस लिखूं तो क्या किस तरह से लिखूंगा? मैं इसका एड्रेस लिखूंगा 5FFFEH. ये इसका एड्रेस हुआ. इसका क्या हो जाएगा? 5FFFD. ये क्या हो जाएगा? 5FFFC. देन ये B. सो सपोज इसका जो एड्रेस है वो क्या है? 5FFFBH. उसके बाद में क्या होगा? ये C हो जाएगा, ये D E F, कुछ इस तरह से.
So and this will be what 5FFFAH. ओके, सपोज इसके ऊपर कोई भी डाटा आपके पास में नहीं है. सो टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है 25 है. सो स्टैक पॉइंटर बेसिकली क्या पॉइंट कर रहा होगा टॉप ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट की लोकेशन आपको बताएगा. और स्टैक पॉइंटर में बेसिकली सेव क्या होगा, स्टैक पॉइंट में सेव होगा आपके पास में जो टॉप एलिमेंट है उसका एड्रेस बताएगा. और उसका एड्रेस स्टैक पॉइंटर पे ऑफसेट की फॉर्म में सेव होगा. तो ऑफसेट अगर फाइंड आउट करना होगा तो इसका क्या हो जाएगा FFFA. सो बेसिकली स्टैक पॉइंटर में सेव क्या है FFFA सेव है बेसिकली. समझ में आया अब आपको. अब नेक्स्ट सपोज अब आपको क्या करना है कि पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है. अब पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सपोज मैं लिख रहा हूं यहां पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है पुश BX. तो BX के जो कंटेंट है, BX का जो भी कंटेंट है वो उस BX का जो भी कंटेंट होगा वो BX का कंटेंट आपको इस मेमोरी में आपको यहाँ पे सेव करना है, जिसको बोला मैंने क्या स्टैक मैंने जिसको बोला. समझ में आया. आपको क्या करना है कि BX के जो भी कंटेंट है, BX 16 बिट का रजिस्टर है, देखो बताया था मैंने पुश रजिस्टर 16 बिट का. सो 16 बिट का जो भी रजिस्टर है उसमें जो कंटेंट है 16 बिट का डाटा वो आपको टेम्परेरी मेमोरी में आपको क्या करना है स्टोर करना है. तो ऑब्वियसली अगर आपको स्टोर करना है टेम्परेरी उसमें मेमोरी में तो किस तरह से सेव होगा. आपके पास में दो लोकेशन होनी चाहिए, उस दो लोकेशन में क्या होगा बेसिकली जाके स्टोर होगा. तो दो लोकेशन वो कौन कौन सी होंगी, एक तो लोकेशन होगी ये और दूसरी लोकेशन बिकॉज इसमें 8 बिट का डाटा क्या होगा स्टोर होगा बेसिकली. सो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो 5FF इस लोकेशन की एड्रेस लिख रहा हूं मैं फिजिकल एड्रेस. F9 के बाद क्या आता है FFF9 के बाद में 10 तो ये क्या हो जाएगा AB कुछ इस तरह से. तो ये क्या इसका अगर मैं एड्रेस लिखूं तो क्या होगा 5FFF8H कुछ इस टाइप का. ठीक है. तो क्या करना है आपको कि BX रजिस्टर में जो भी डाटा है उस डाटा को आपने इस टेक्स्ट सेगमेंट में आपने लोड करना है. तो लोड करना है तो अब जो डाटा लोड होगा एक तो यहाँ पे लोड होगा और दूसरा जो डाटा लोड होगा एक तो डाटा आपका यहाँ पे लोड होगा दूसरा डाटा आपका यहाँ पे लोड होने वाला है. ठीक है. सो BX का कंटेंट क्या है बेसिकली. सो लेट BX में जो डाटा स्टोर है वो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि दिस इज BX में 16 बिट का डाटा है. सो 16 बिट का डाटा सपोज स्टोर है CC और DD. ये डाटा आपको स्टोर है BX में. ओके. देन फर्स्ट क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा स्टैक पॉइंटर का ये हुआ. सो फर्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा कि स्टैक पॉइंटर जो भी आपका है वो -1 दिस. ओके. ये आपकी स्टैक पॉइंटर की यहाँ पे वैल्यू क्या है स्टैक पॉइंटर की FFFFA. सो उसके बाद में स्टैक पॉइंटर सबसे पहले क्या होगा -1. फिर उसके बाद में यहाँ पे कंटेंट लोड हो जाएगा. देन अगेन स्टैक पॉइंटर फिर -1 दूसरा कंटेंट यहाँ पे लोड हो जाएगा. सो लोड देखो किस तरह से होगा. यहाँ पे जो वैल्यू लोड होगी वो क्या हो जाएगी जो भी रजिस्टर आपको लोड करना है उसकी लोअर वैल्यू लोड हो जाएगी. यहाँ पे BL यहाँ पे लोड हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू लोड होगी वो क्या हो जाएगा BH वैल्यू लोड हो जाएगा. तो आपको क्या करना है कि स्टैक पॉइंटर जो भी आपका डिफाइन है और रजिस्टर ये रजिस्टर का जो हायर बाइट का जो भी कंटेंट है रजिस्टर की हायर बाइट का जो कंटेंट है वो किस लोकेशन पे स्टोर कर दो SP-1. सपोज पहले SP कितना FFFA -1 किया क्या मिला FFF9. सो आपका क्या हो जाएगा रजिस्टर हाई का जो डेटा है वो बेसिकली स्टैक पॉइंटर का जो कंटेंट है स्टैक पॉइंटर का जो कंटेंट है उसमें से -1 करो और उसकी लोकेशन पे इस आप डाटा क्या कर दो रजिस्टर का हाई डाटा सेव कर दो. देन सिमिलरली क्या कर दो रजिस्टर का जो लोअर का जो कंटेंट है वो क्या करो अगेन आप स्टैक पॉइंटर में से क्या माइनस करो -2 अगेन माइनस करो और उसकी जगह सेव कर दो.
और स्टैक पॉइंटर को आप क्या कर दो, मॉडिफाई कर दो स्टैक पॉइंटर -2 और स्टैक पॉइंटर को मॉडिफाई कर दो -2 से। सो बेसिकली ये प्रोसेस परफॉर्म होगी। अब आपसे पूछे कि bx पुश bx आपको करना था, तो bx में डाटा है cc और dd। सो स्टैक पॉइंटर में क्या है f f f a। सो f f a -1 में मैंने किया तो आपको क्या मिला f f f 9। तो यहाँ पे कौन सा डाटा सेव होगा, यहाँ पे रजिस्टर का हायर कंटेंट सेव होगा। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि क्या डाटा आएगा, तो यहाँ पे जो डाटा आएगा हायर वो क्या है cc डाटा आएगा यहाँ पे। उसके बाद में वापस फिर माइनस किया मैंने और रजिस्टर का क्या होगा लोअर बाइट आएगी। लोअर बाइट क्या है यहाँ पे dd। अब आपसे पूछे कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू। सो उस टाइम स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी f f f 8h। ये स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है, क्योंकि स्टैक पॉइंटर किसकी वैल्यू बताता है टॉप ऑफ द एलिमेंट की। सो टॉप ऑफ द एलिमेंट आपका क्या है अब dd। उसकी लोकेशन अगर, क्योंकि स्टैक पॉइंटर आपकी किसकी वैल्यू बताता है आपको, स्टैक पॉइंटर टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है। सो टॉप ऑफ द एलिमेंट आपकी बार क्या है dd। उस एलिमेंट की लोकेशन क्या है 5ffff8h और ऑफसेट स्टोर होगा तो इसकी लास्ट की 4 डिजिट ffff8। सो ये बेसिकली क्या है स्टैक पॉइंटर में अब सेव होगा। स्टैक पॉइंटर कुछ इस तरह से अपडेट हो जाएगा। बेसिकली समझ में आया आपको कि स्टैक पॉइंटर में पुश ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज व्हाट पॉप। सो जैसे आपने 16 बिट का डाटा पुश किया, वैसे ही रिट्रीव करते टाइम भी जो रजिस्टर होगा पॉप रजिस्टर, ये रजिस्टर भी कितने बिट का होगा, ये रजिस्टर भी बेसिकली 16 बिट का रजिस्टर ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली कुछ इस तरह से लिखा जाएगा पॉप bx पॉप dx, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, सो मैं वो सेम एग्जांपल आपका, अब bx को आपने पहले क्या किया था पुश किया था और अब आप क्या कर रहे हो कि bx रजिस्टर है, उसी रजिस्टर में डाटा आप क्या करोगे पॉप करोगे, मतलब उसी में डाटा आप क्या करने वाले हो लोड करने वाले हो। मैं वो सेम एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ कि सेम कुछ इस तरह से आपका ये आपका स्टैक सेगमेंट है। दिस इज व्हाट स्टैक सेगमेंट और 500000h ये इनिशियल वैल्यू यहाँ से स्टार्ट है और 5ffff ये कितना साइज हो गया इसका बेसिकली, ये दिस इज व्हाट 64 KB का साइज हुआ बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से डाटा आपका सेव है। ठीक है, सो कुछ इस तरह से कुछ भी मान सकते हो आप, यहाँ डाटा सेव है। सपोज यहाँ 12 सेव है, 21 सेव है, 32 सेव है, कुछ भी सेव है। तो लास्ट जो डाटा सेव था वो बेसिकली था आपका सी और यहाँ आपका सेव था डी सेव था, कुछ इस टाइप का, इस तरह से डाटा सेव था। तो ओके, सो ये जो लोकेशन है बेसिकली डी वाली, वो लोकेशन है बेसिकली 5ffff8h और ये जो लोकेशन है वो बेसिकली है 5ffff9h। आगे जो है बेसिकली वो क्या होगी 5ffff8h, यहाँ पे कुछ डाटा होगा, देन ये FED ओके। सो सपोज इसका अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका इसका एड्रेस हुआ, ये वाला एड्रेस इसका हुआ, इसका एड्रेस मैं लिख रहा हूँ 5ffffBH, देन इसका मैं एड्रेस लिख रहा हूँ 5ffFCH एंड इसका जो एड्रेस होगा वो होगा 5ffFDH और इसका जो एड्रेस होगा वो लिखा हुआ है 5ffFEH
और इसका आपने लिखा हुआ है। सो सपोज यहाँ पे जो कंटेंट है वो आपका 21, 24, 25, 32 कुछ भी इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या परफॉर्म करना है, आपको परफॉर्म करना है पॉप bx, मतलब bx में आपको क्या करना है, जो आपने डाटा पहले पुश किया था वो आपको क्या करना है, वापस फिर से लोड करना है। सो उस टाइम अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बताओ, सो स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, बेसिकली स्टैक पॉइंटर आपको बताएगा कि टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है उसका, उस एड्रेस का ऑफसेट। सो टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है, dd है। सो dd अगर टॉप एलिमेंट है तो उसका एड्रेस अगर आपको पता लगा, फिजिकल एड्रेस है 5ffF8। अब अगर आपको पता करना हो कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी बताओ, क्या हो जाएगी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू। सो बेसिकली स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी क्या, ये जो लास्ट की 4 डिजिट जो है ये स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बता रही है आपको, ठीक है। तो इस टाइम स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है आपके पास में FFF8H, ये स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है आपके पास में। अब आपको क्या करना है, डाटा लोड करना है। तो ये जो है वो तो आपको बता रहा है दिस इज फॉर व्हाट, BL, ये आपको बता रहा है BH, होगा कि नहीं होगा, ये BL का कंटेंट, ये और BH का कंटेंट, ओके। सो DD आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टैक पॉइंटर जो आपके पास में गिवन है उस स्टैक पॉइंटर से वैल्यू, आपको जो स्टैक पॉइंटर में जो वैल्यू है, स्टैक पॉइंटर की लोकेशन पे जो कंटेंट पड़ा है बेसिकली, वो आप बेसिकली क्या करोगे, रजिस्टर के लोअर बाइट में डालोगे आप। बेसिकली ये जो लोड होगा वो बेसिकली क्या होगा कि B के L में लोड होगा, B के L में। अगेन स्टैक पॉइंटर फिर से क्या होगा, प्लस फिर से अपडेट हो जाएगा बेसिकली। सो ये स्टैक पॉइंटर 1 फिर से अपलोड हो गया। सो स्टैक पॉइंटर 1 की जो वैल्यू है, स्टैक पॉइंटर का जो भी कंटेंट है वो तो DD तो आपने BL में डाल दिया। अगेन ये जो स्टैक पॉइंटर नेक्स्ट यहाँ का जो डेटा है वो आप किस में डालोगे, BH में डालोगे। अब जो स्टैक पॉइंटर FF8 था वो क्या हो जाएगा, FF9, मतलब स्टैक पॉइंटर प्लस 1 का जो डेटा है वो अब किस में चला जाएगा, बेसिकली वो डेटा जाएगा रजिस्टर के हायर में, ठीक है। अब यहाँ जो लोकेशन है वो क्या होगी, यहाँ पे एक भी डाटा नहीं है क्योंकि ये डाटा आपने किस में भेज दिया, मूव कर दिया आपने बेसिकली, ठीक, कॉपी नहीं किया है, मूव किया है यहाँ से डेटा आपने, यहाँ से भी कॉपी नहीं किया है, मूव किया है डेटा, यहाँ से कॉपी, यहाँ से कॉपी। अब स्टैक पॉइंटर जो है वो क्या हो गया, वो वैल्यू किसकी बताएगा बेसिकली, वो तो लास्ट एलिमेंट जो भी है, टॉप एलिमेंट जो भी है उसका एड्रेस बताएगा। अब एड्रेस किसका बताएगा, वो FFFA बताएगा बेसिकली। सो इट मीन्स स्टैक पॉइंटर जो है उसकी जो वैल्यू है वो भी मॉडिफाई हो जाएगी बाई 2 से। सो ये स्टैक पॉइंटर आपका मॉडिफाई हो गया। अब इस एग्जाम्पल की बात आती है, तो इस एग्जाम्पल में अगर हम करें बेसिकली, सो ये BL और BH में वैल्यू क्या जाएगी। सो अभी हमने डिस्कस किया कि BL और BH में क्या वैल्यू होगी। सो BL में तो देखो वैल्यू होगी क्या, DD, और BH में जो वैल्यू है वो हो जाएगी क्या, CC, ठीक है। तो यही तो आपकी वैल्यू थी और यही आपने क्या किया था, पुश किया था, यही आपको आपने लोड कर लिया। So basically this is all about the push and pop. Next is push memory. अब क्या गिवन है बेसिकली, ये तो ये मेमोरी आपको स्पेसिफाइड किया हुआ है। उस मेमोरी में अच्छा ये पुश ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होगा बेसिकली 16 बिट का डाटा, जैसे रजिस्टर था उसमें भी 16 बिट का डाटा था। अब मेमोरी जो आप स्पेसिफाई करोगे मेमोरी में, इट मीन्स आप क्या करोगे बेसिकली, मेमोरी 1 और मेमोरी 2, यहां से तो आपको डाटा क्या मिलेगा, 16 बिट का डाटा मिलेगा, बिकॉज मेमोरी 1 में डाटा स्टोर हो होगा 8 बिट का, मेमोरी 2 में स्टोर हो होगा 8 बिट का। सो दोनों मिला के क्या बने, 16 बिट का। सो इस तरह से डाटा आपको क्या करना है, पुश करना है। सो सपोज आपको जो गिवन है वो बेसिकली है, क्वेश्चन गिवन है, सेम प्रोसेस वही करेंगे। चलो करते हैं, अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं, पुश ऑफ BX,
सीखा था हमने कि एक्चुअली BX, अब BX को पुश नहीं करना, BX बेसिकली एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है। बताया था मैंने आपको कि BX इज द ओनली रजिस्टर दैट कैन होल्ड द वैल्यू ऑफ मेमोरी, एड्रेस बेसिकली एड्रेस होल्ड कर सकता है बेसिकली BX इज द ओनली रजिस्टर इन 8086। सो ओके, सो पुश BX। अब आपको फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो माइक्रो प्रोसेसर विल लुक इनटू द डेटा सेगमेंट रजिस्टर। सो लेट डाटा सेगमेंट जो रजिस्टर है वो डिफाइन है कितना, 5000H से, 16 बिट का डाटा ही होगा ना इसमें डाटा सेगमेंट रजिस्टर में। BX में जो डिफाइन है कंटेंट वो है आपका बेसिकली 2000H। अब BX जो है इसमें बेसिकली ऑफसेट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो अब फिजिकल एड्रेस आप निकाल सकते हो, तो फिजिकल एड्रेस निकालो, तो चलो फिजिकल एड्रेस बताओ, 52000। फिजिकल एड्रेस तो अब सबको आ गया होगा निकालना, ओके। देन सेकंड लोकेशन आपकी, इसमें 8 बिट डाटा स्टोर होगा 52000H में, दूसरा 52001H। सपोज यहाँ जो डाटा है वो है आपका कितना, 11। यहाँ जो डाटा पड़ा है वो कितना डाटा है, वो पड़ा है आपका 00, ओके। दिस इज 1H, ओके। तो अब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो डाटा पड़ा है उस डाटा को स्टैक में आपको क्या करना है, आपको वो स्टैक में आपको स्टोर करना है बेसिकली, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका स्टैक है, ठीक है। अब सिमिलरली स्टैक का वो भी आप बता सकते हो कि बेसिकली टोटल जो कितना डिफाइन है 64 KB साइज इसका, ठीक है। इनिशियल वैल्यू ले सकते हो आप कुछ भी, लास्ट वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, बट टोटल क्या होगा 64 KB साइज होगा। सपोज दिस इज द टॉप एलिमेंट, सपोज टॉप एलिमेंट इज 3E 51232101। ये 88 बिट के डाटा आपके पास में पड़े हैं, ठीक है। और लेट की जो बेस वैल्यू है वो सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 70000H से। सो एंड होगा बेसिकली क्या, 7F4 टाइम F। अब इसकी जो वैल्यू होगी इस एड्रेस की वो हो जाएगी आपका 7FFFEH। इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बेसिकली 7FFFDH। ये जो एड्रेस की वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका 7FFFCH। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका क्या, 7FFFBH, ठीक है। अब दिस इज द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। सो स्टैक पॉइंटर के पास में कोई आपसे पूछे कि स्टैक पॉइंटर के पास में क्या है, सो स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू अगर आप पूछे, स्टैक पॉइंटर का कंटेंट अगर आपको पूछे तो कोई तो आप बता सकते हो कि स्टैक पॉइंटर का कंटेंट बेसिकली क्या होगा, स्टैक पॉइंटर का कंटेंट। सो स्टैक पॉइंटर बेसिकली क्या होगा, स्टैक पॉइंटर विल इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट। सो टॉप एलिमेंट कौन सा है, 3E, उसका एड्रेस कितना है 7FFFFB। सो स्टैक पॉइंटर बेसिकली है 16 बिट का रजिस्टर, तो बेसिकली अगर 16 बिट का रजिस्टर है स्टैक पॉइंट, तो उसके पास में स्टैक पॉइंटर के पास में क्या वैल्यू होल्ड करेगा, बेसिकली वो लास्ट 4 बिट, ये फिजिकल एड्रेस हुआ आपका, तो इसकी लास्ट 4 डिजिट तो क्या होल्ड करेगा, FFFB, ठीक है। अब क्या करना है, इस मेमोरी पे जो भी कंटेंट है वो आप में इसमें पुश करना है। तो ऑब्वियसली कितने बिट का डाटा आपको पुश करना है, बेसिकली 16 बिट का डाटा पुश करना है। तो ये 8 बिट का डाटा यहाँ पे आएगा और दूसरा जो 8 बिट का डाटा है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा 6 बिट का। अब क्या करोगे आप कि स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है, नेक्स्ट क्या करोगे, स्टैक पॉइंटर में जो भी कंटेंट है वो स्टैक पॉइंटर
की जो वैल्यू है उसको करोगे -1, ठीक है। अब स्टैक पॉइंटर के -1 में जो वैल्यू एड्रेस वो होल्ड कर रहा है, क्या होल्ड करेगा, FFFFA। यहां पे क्या वैल्यू आएगी बेसिकली, सो यहां पे जो मेमोरी का हायर MH लिखा है मैंने, मेमोरी का जो हायर एड्रेस होगा उसका डेटा यहां पे आएगा, MH कुछ इस टाइप का 16 बिट का डाटा है ना। सिमिलरली स्टैक पॉइंटर -2 इसका कंटेंट स्टैक पॉइंटर -2 का कंटेंट और उसका कंटेंट, डबल ब्रैकेट का मीनिंग शायद आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज व्हाट M of L लोअर। तो ये इसका जो एड्रेस है वो बेसिकली मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज व्हाट 7 F F F 9H। इसका जो एड्रेस अगर मैं लिखूं तो होगा 7 F F F AH, होगा नहीं होगा। तो दोनों में से हायर और लोअर बता सकते हो कौन सा है, सो दिस इज व्हाट लोअर, दिस इज व्हाट हायर। सो हायर में बेसिकली क्या होगा, हायर में बेसिकली हायर जो भी एड्रेस है उसमें आपका मेमोरी का हायर कंटेंट जाएगा बेसिकली, इसमें आपका मेमोरी का हायर कंटेंट जाएगा SP1 में, ठीक है। सो यहाँ पे आपका मेमोरी का जो भी हायर कंटेंट है, मेमोरी का हायर कंटेंट 0 और 0 1 में कौन कौन सा है आपका, सो बेसिकली मेमोरी का जो हायर कंटेंट मतलब ये कंटेंट यहाँ पे आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 0 आएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो डाटा आएगा वो बेसिकली क्या होगा, ये डाटा आएगा यहाँ पे, इस मेमोरी लोकेशन का डाटा यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली 1 1 आ जाएगा यहाँ पे। और स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है, स्टैक पॉइंटर का जो कंटेंट है वो -2 से क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। आई बात समझ में आपको। नेक्स्ट इज पोस्ट सेगमेंटेशन रजिस्टर। अब क्या होगा, सेगमेंट रजिस्टर का जो भी डाटा है वो क्या करना है, आपको स्टैक में सेव करना है। सो ये सेगमेंटेशन रजिस्टर ये भी कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। मतलब स्टैक में जो भी डाटा सेव कर रहे हो ना आप स्टोर कर रहे हो, वो 16 बिट का डाटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है। अब सेगमेंट रजिस्टर में कौन कौन से सेगमेंट रजिस्टर आते हैं, डाटा सेगमेंट भी आता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट भी होता है, और कौन सा स्टैक सेगमेंट में आप सेव कर ही रहे हो, और कोड सेगमेंट भी होता है बेसिकली। सो बेसिकली कोड सेगमेंट का डाटा आप स्टैक सेगमेंट में स्टोर नहीं कर सकते हो, दिस इज नॉट अलाउड। ओके, सो किस तरह से सेव करोगे आप, देयर इज वन मोर सेगमेंटेशन रजिस्टर, व्हाट, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। ओके, स्टैक सेगमेंट, डाटा सेगमेंट रजिस्टर, these are रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, कोड सेगमेंटेशन रजिस्टर। सो कोड सेगमेंट रजिस्टर का जो डाटा है 16 बिट का वो आप स्टोर नहीं कर सकते इसमें टेम्परेरी मेमोरी में, और सारे के सारे कितने 16 बिट के हैं। सो सपोज इंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूं पुश SS, मतलब स्टैक सेगमेंट रजिस्टर का जो भी डाटा है वो आपको स्टैक सेगमेंट में आपको पुश करना है, मतलब स्टोर करना है, ठीक है। अब स्टैक सेगमेंट का जो भी डाटा है वो पहले तो बताओ क्या है, तो ये स्पेसिफाई किया मैंने कि F0 F1 ये डाटा है उसका, ठीक है। अब क्या करूंगा कि बेसिकली क्या परफॉर्म होगा कि बेसिकली सिमिलर वे में प्रोसेस, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं आपको कि ये आपके पास में स्टैक है, स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो है ये। अब टॉप एलिमेंट का कोई एड्रेस आपसे पूछे कि सपोज ये स्पेसिफाई आपका 5000H और ये एंड हो रहा है 5FFFFH पे, ठीक है। टोटल साइज कितना है स्टैक का, ये बेसिकली व्हाट
स्टैक ही है ये। कितना साइज है टोटल? 64 KB का। यहाँ ये आपको टॉप एलिमेंट बेसिकली आपको शो कर रहा है, तो टॉप एलिमेंट बेसिकली है 5 F F F F 8 H पे, ठीक है। सो अब आपसे पूछे कि स्टैक पॉइंटर में क्या सेव होगा, सो स्टैक पॉइंटर में सेव होगा F F F 8H, ये सेव होगा स्टैक पॉइंटर में, होगा कि नहीं होगा? बिकॉज टॉप एलिमेंट जो भी है आपके पास में, सो टॉप एलिमेंट आपके पास में यहाँ टॉप एलिमेंट है, तो टॉप एलिमेंट का जो भी ऑफसेट आपको एड्रेस बताएगा वो, तो एड्रेस आपको बता रहा है FFF8H, ओके। सो ये स्टैक पॉइंटर में आपके पास में सेव है डाटा। अब आपको क्या करना है कि स्टैक सेगमेंट रजिस्टर का जो भी डाटा है, वो डाटा कौन सा है F0 F1, वो आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टोर करना है। तो बेसिकली क्या होगा, डाटा जो स्टोर होगा 16 बिट का डाटा है, तो ऑब्वियसली आपको 2 मेमोरी स्पेस लोकेशन आपको रिक्वायर्ड है, तो एक तो ये रिक्वायर्ड हुआ, दूसरा आपको ये रिक्वायर्ड हुआ, ओके। सो इसका लोकेशन का अगर मैं एड्रेस लिखूं तो वो कितना हो जाएगा 5FFF7H, और अगर इसका मैं लिखूं तो वो कितना हो जाएगा F5FFF6H हो जाएगा। यहाँ पे आपका डाटा जो भी स्टैक सेगमेंट में वो आएगा। सो यहाँ पे जो डाटा आपका आएगा वो डाटा आपका कौन सा डाटा होगा, स्टैक सेगमेंट का हायर, मीन्स F0 डाटा आएगा। देन अगेन यहाँ पे जो डाटा आएगा वो कौन सा डाटा आएगा, F1 डाटा आएगा। मतलब यहाँ पे तो आपके पास में अवेलेबल होगा क्या, F1, और यहाँ पे आपका डाटा अवेलेबल होगा वो होगा F0। समझ में आ गया आपको कि बेसिकली F1 ये जो डाटा है वो किस मतलब स्टैक सेगमेंट का लोअर, स्टैक सेगमेंट का हायर, और स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू होगी अपडेटेड न्यू वैल्यू स्टैक पॉइंटर की, वो बेसिकली कितनी हो जाएगी, F पहले कितना था 8, अब कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा 6। तो न्यू अपडेटेड वैल्यू स्टैक पॉइंटर की ये हो जाएगी आपके पास में। समझ में आया आपको? ओके, वन मोर थिंग कि कोड सेगमेंट को आप इसमें सेव नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली वन मोर इंस्ट्रक्शन, पुश फ्लैग, पुश F का मतलब होगा फ्लैग रजिस्टर। सो बेसिकली फ्लैग रजिस्टर भी कितने बिट का होता है, 16 बिट का। सो फ्लैग रजिस्टर को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, F ये इसका लोअर और ये F का H, ये लोअर बाइट इसकी, FH की लोअर बाइट, हायर बाइट। सो सिमिलरली वैसे ही करना है आपको भी कि ये स्टैक पॉइंटर, ये मैं आपकी बात डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि सपोज स्टैक पॉइंटर आप डिफाइन करोगे, स्टैक होगा, स्टैक पॉइंटर की कोई आप वैल्यू डिफाइन करोगे। सो FH जो हायर जो बाइट होगी फ्लैग रजिस्टर की, वो बेसिकली आप सेव करोगे कहाँ पे, स्टैक पॉइंटर का कंटेंट, स्टैक पॉइंटर का कंटेंट में से -1 करोगे और उसके, ठीक है, उसके कंटेंट में सेव करोगे बेसिकली आप। देन अगेन FL जो होगा बेसिकली, दिस इज FL कहाँ सेव करोगे बेसिकली, सिमिलरली वही स्टैक पॉइंटर डिफाइन होगा, उसमें से माइनस आप क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, अगेन कुछ इस तरह का, और स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है वो आप क्या करोगे, अपडेट कर दोगे, किससे, -2 से, और स्टैक पॉइंटर, ये न्यू स्टैक पॉइंटर हो गया बेसिकली, ठीक है, समझ गए। सो सिमिलरली पुश फ्लैग भी हो गया आपका, फ्लैग रजिस्टर मैंने बता दिया आपको कि फ्लैग रजिस्टर से कि लोअर बाइट और हायर बाइट किस तरह से आप पुश F कर सकते हो बेसिकली, ओके। सो सिमिलरली जैसे आपने पुश का किया है वैसे ही हम पॉप भी कर सकते हैं। सो सिमिलरली जैसे आपने पॉप रजिस्टर किया, और रजिस्टर कितने बिट का होगा यहाँ पे, 16 बिट का। अभी आपने किया था पॉप BX, ठीक है। सो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, पॉप मेमोरी, और मेमोरी में भी क्या होगा बेसिकली 16 बिट का, वही 16 बिट का स्पेसिफाई होगी,
मीन 16 बिट का डाटा जाएगा, मैम प्लस मैम और मैम प्लस 1, ओके, मेमोरी और मेमोरी प्लस 1। सो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, पॉप सेगमेंटेशन रजिस्टर कर सकते हो, जैसे आपने पुश किया वैसे पॉप करेंगे, और सिमिलरली जैसे आपने पुश किया फ्लैग रजिस्टर को वैसे ही पॉप भी कर सकते हो फ्लैग रजिस्टर को। सो मैंने ये एक एग्जांपल बता दिया आपको पॉप रजिस्टर का, सिमिलरली पॉप मेमोरी हो जाएगा, सिमिलरली पॉप सेगमेंटेशन रजिस्टर हो जाएगा और पॉप फ्लैग रजिस्टर हो जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, समझा दिया मैंने आपको ये। सो पुश और पॉप का हमने डिस्कस किया अभी। सो बच्चों रटना नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि रटना मना है, रटना नहीं है आपको। पुश और पॉप में बेसिकली कंसेप्ट समझो कि किस तरह से हम बेसिकली डाटा स्टोर कर रहे हैं, और जैसे स्टोर कर रहे हो उसी मैनर में आप क्या कर रहे हो, रिट्रीव भी कर रहे हो डाटा, ठीक है, पॉप अप कर रहे हो। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज व्हाट, एक्सचेंज। अब आपको क्या करना है, डाटा को एक्सचेंज करना हो। सो एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन, इसके लिए जो फर्स्ट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा XCHG रजिस्टर 1 कॉमा रजिस्टर 2। मीनिंग क्या होगा इसका कि रजिस्टर 1 में जो कंटेंट है और रजिस्टर 2 में जो कंटेंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। समझ में आया आपको कि चलो एक एग्जांपल से समझते हैं हम। XCHG और गिवन है AL, BL। वन मोर थिंग कि जो भी डाटा आप एक्सचेंज कर रहे हो वो उन दोनों की सबकी साइज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ऑब्वियसली। ऐसा तो नहीं कि 16 बिट का डाटा को आप 8 बिट से आप एक्सचेंज करवा दो, 8 बिट का डाटा 16 से करवा दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सपोज इसमें जो AL का डाटा है वो है आपके पास में F1, BL का जो भी कंटेंट है वो है आपके पास में 20। तो ये इंस्ट्रक्शन जैसे एग्जीक्यूट हुआ, सो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद में वो अब आपसे पूछ रहा है कि AL के कंटेंट बताओ। सो AL का कंटेंट बताओ, ये लो AL का कंटेंट। देन वो पूछ रहा है BL का कंटेंट बताओ। सो बेसिकली क्या होने वाला है, डाटा एक्सचेंज हो जाएगा। AL में पहले F1 था, वो अब BL में जो डाटा था वो AL में आ जाएगा, मतलब 20 था वो 20 यहाँ पे आ गया। BL में पहले AL में जो F1 था वो BL में आ जाएगा, ये F1। सो ये डाटा आपका क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। समझ में आ गया आपको। सिमिलरली मेमोरी का करेंगे हम। सो नेक्स्ट इज व्हाट, XCHG मेमोरी कॉमा रजिस्टर। क्या होगा कि मेमोरी और रजिस्टर दोनों के कंटेंट जो है वो आपस में चेंज होंगे किस तरह से। तो बेसिकली क्या होगा कि रजिस्टर में जो डाटा है और मेमोरी में जो डाटा है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, बेसिकली एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, XCHG BX, मेमोरी को कुछ इस तरह से स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, और कॉमा AX, और जो गिवन डेटा है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। AX इज व्हाट, FA01 एंड DS इज व्हाट 5000H, सारे हेक्साडेसिमल में, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं मैं। देन BX में जो डाटा है वो है 2000H, ओके, H मैं इसमें भी नहीं लिख रहा हूं, ओके। फिर अब आप फिजिकल एड्रेस आप निकालो, मेमोरी। सबसे पहले तो क्या करो, AX का जो कंटेंट है, AX का कंटेंट ये रहा, इस मेमोरी लोकेशन पे कंटेंट क्या है,
आपने क्या किया कि AX का कंटेंट तो आपने बता दिया, इस पर्टिकुलर मेमोरी पे क्या डेटा है वो कैसे पता लगेगा, उसके लिए आपको डाटा सेगमेंट की वैल्यू पता होना चाहिए, डाटा सेगमेंट की वैल्यू ये रही, BX की वैल्यू ये पता होनी चाहिए। अब फिजिकल मेमोरी आपने कैलकुलेट कर ली, फिजिकल मेमोरी कितनी हो जाएगी बेसिकली, सो आपके पास में 52000। सो इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे डाटा कुछ ना कुछ होगा आपके पास में, ठीक है। AX से चेंज करवा रहे हो आप, इट मीन्स डाटा कितने बिट का होगा, 16 बिट का डाटा, तो यहाँ पे तो केवल 8 बिट का डाटा होगा। सो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कौन सी हो जाएगी, 52001। सो यहाँ पे कोई ना कोई डाटा होगा। सो वो डाटा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, सपोज दिस इज 1F एंड दिस इज व्हाट 2F, राइट। अब क्या कर रहे हैं बेसिकली कि मेमोरी का जो डाटा है वो रजिस्टर में चला जाएगा, रजिस्टर का जो डाटा है वो मेमोरी में चला जाएगा। सो एग्जीक्यूशन होने के बाद में वो आपसे पूछ रहा है कि AX के कंटेंट बताओ, ये लो AX के कंटेंट। तो और फिर वो नेक्स्ट पूछ रहा है कि मेमोरी के कंटेंट, मतलब 52001 पे क्या डाटा है और 52000 पे क्या डेटा है, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। अब 52000 में जो डेटा था मतलब 2F, वो किस में चला जाएगा बेसिकली, वो AL में चला जाएगा, क्योंकि ये लोअर बाइट है एड्रेस की, लोअर मेमोरी एड्रेस है, तो लोअर मेमोरी एड्रेस का जो कंटेंट है वो बेसिकली AL में जाएगा, मतलब यहाँ पे चला जाएगा आपका 2F। हायर जो मेमोरी एड्रेस है वो बेसिकली AH में चला जाएगा, वो होगा क्या, 1F 2F। तो बेसिकली आपके पास में जो डाटा अवेलेबल होगा वो क्या हो जाएगा, 2F 1AF 2F। तो बेसिकली डाटा इस तरह से अवेलेबल हो जाएगा आपका 1F और 2F का, ठीक है। और यहाँ जो डाटा अवेलेबल है मतलब 52000 में क्या जाएगा बेसिकली, तो आपका AL का कंटेंट जाएगा। AL में क्या अवेलेबल है, AL में जो कंटेंट अवेलेबल है वो बेसिकली है क्या, 01, और 001 पे बेसिकली क्या जाएगा, AH में जो अवेलेबल है, AH में क्या है, FA अवेलेबल है। सो इस तरह से आपका एक्सचेंज ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ओके। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XLAT। बेसिकली मीनिंग क्या हुआ इसका, बेसिकली ट्रांसलेट। अब किसको ट्रांसलेट करेगा बेसिकली, सो ASCII कोड जो है उसको बेसिकली ये कन्वर्ट करेगा किसमें, EBCDIC, ठीक है। सो इस कोड में बेसिकली ये क्या करेगा, चेंज करेगा बेसिकली, ओके। सो कैसे परफॉर्म होता है बेसिकली, ये इस टाइप का इंस्ट्रक्शन है जिसमें केवल इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही गिवन होगा आपको, XLAT, ठीक है, कोई ऑपरेंड नहीं गिवन है बेसिकली, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म होने वाला है, बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है क्या, AL का जो कंटेंट है प्लस BX का जो कंटेंट है वो, और इनका जो कंटेंट है इस लोकेशन पे जो भी है वो किस में चला जाएगा, आपका AL में चला जाएगा। बेसिकली ये क्या है, एक लोकेशंस बता रहा है आपको। सो ये लोकेशंस, ये इंस्ट्रक्शन सेम वैसा ही है आपको, सिमिलर टू सपोज, ओके, इसका ये आप मेमोरी लोकेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, बेसिकली आप फाइंड आउट करोगे, इसको आप लिख सकते हो कि बेसिकली ये BX क्या होल्ड कर रहा है, एड्रेस होल्ड कर रहा होगा ऑफसेट। सो सबसे पहले चलो इसको सॉल्व करो, तो कैसे करोगे, DS इंटू 10H प्लस BX में जो पड़ा है वो, राइट। सिमिलरली यहाँ पे AL और दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ AL। अब इस लोकेशन पे, दिस इज व्हाट 20 बिट फिजिकल एड्रेस, अब इस लोकेशन पे कोई डाटा जो पड़ा है वो AL में जाएगा। समझ में आया आपको, तो चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको ये समझ में आ गया कि इस लोकेशन पे जो डाटा पड़ा है वो जो डाटा है वो बेसिकली AL में आपको सेव करना है, ओके। तो ओके, ये इस इंस्ट्रक्शन को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मूव
AL कोमा, बिकॉज AL में मूव करना है आपको, और कुछ इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो आप AL और BX। सो ये मेमोरी जो एड्रेस है वो भी आप कुछ इस तरह से फाइंड आउट करोगे, DS इंटू 10H प्लस BX प्लस AL, करोगे कि नहीं करोगे। सो यहाँ पे जो भी डाटा पड़ा है वो आप AL में मूव कर दोगे। सो आपको घर पे करना है ये, तो लेट DS जो गिवन है दैट इज व्हाट 5000H, ये DS में गिवन है, और जो AL का कंटेंट गिवन है वो है 31, 8 बिट का डाटा है। BX में जो पड़ा है वो है आपका 200H, ये BX का कंटेंट है आपका, और जो इस लोकेशन पे जो डाटा पड़ा है, लोकेशन कौन सी लोकेशन हो जाएगी ये बेसिकली, इस लोकेशन पे जो डाटा पड़ा है वो हो जाएगी बेसिकली लोकेशन आपका, कोई भी लोकेशन आप इस लोकेशन पे पहले तो फिजिकल एड्रेस निकालना, और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो डाटा है वो पड़ा है F2 डाटा पड़ा है, ठीक है, और उसको मूव करना है, और मेरे को आप रिजल्ट बताओगे। चलो बताओ। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। सो बेसिकली हमने आज डाटा ट्रांसफर रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ओके, थैंक यू।